پاک افواج بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ، ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنائی جاتی ہے۔ تباہ کن بمباری اور سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کی جاتی ہے۔ پاکستان میں بنائے گئے ہتھیاروں اور جدید ڈرونز دوست ملکوں سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ مربوط انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ پاک امریکی فوج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ سے دفاعی شراکت داری مزید مستحکم۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر مشترکہ مشق سے متعلق بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ دفاعی تعلقات میں نئی جہت ہے۔ مشترکہ مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی۔ مشق میں انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ انسپائرڈ گیمبٹ مشق 8 سے 16 جنوری تک کی گئی۔ ہم ایرانی قوم کو پہنچنے والے جانی نقصانات، تباہی و بہتان تراشی کے باعث امریکن صدر کو مجرم سمجھتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے ایک بیان میں کہا، حالیہ فسادات کے دوران ہونے والی ہلاکتوں، نقصانات اور ایران کے خلاف عالمی سطح پر بدنامی کے پیچھے امریکن صدر کا براہ راست کردار ہے۔ امریکہ نہ صرف داخلی انتشار کو ہوا دے رہا ہے بلکہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈالنے کے لیے جھوٹا بیانیہ بھی استعمال کر رہا ہے۔ ایران امریکی مداخلت کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور اپنی خود مختاری پر کسی دباؤ کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حالیہ فتنے کے دوران تخریب کاری کے منصوبے کی ہولناک تفصیلات کا انکشاف۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا، بیرون ملک تیار کیا گیا منصوبہ شہریوں کے بنیادی ڈھانچے، مقدس مقامات اور روزمرہ کی زندگی کو نشانہ بنا رہا تھا۔ فتنے کے نتیجے میں ہزاروں افراد شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے خود کو قائل کیا۔ ایران میں 800 افراد کو پھانسی روکنے کا بہت بڑا اثر پڑا۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی جوہری افسردگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ٹرمپ کا پام بیچ میں تقریب سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ سنتاس معاہدے پر بھارتی اقدامات کے خلاف امریکن جریدے کی پاکستانی موقف کی حمایت۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی سنتاس معاہدے کی معطلی جنوبی ایشیا میں کشیدگی بڑھا دے گی۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کا دولہستی اسٹیج منصوبہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی قوانین کے تحت بھارت پاکستان کو مغربی دریاؤں کا پانی دینے کا پابند ہے۔ پاکستان کی مقبوضہ جموں کشمیر میں مساجد اور انتظامی کمیٹیوں کے پروفائلنگ کی مذمت۔ مذہبی امور میں مداخلت سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ذاتی معلومات اور تصاویر کا جبری حصول، منظم ہراسانی کے مترادف کشمیریوں میں خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ کشمیر میں مساجد، علماء کو نشانہ بنانا امتیازی فرقہ وارانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاک فوج اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی ناقابل برداشت ہے۔ کسی کو بھی فتنہ اور فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، احتجاج پرامن ہو تو کوئی ممانعت نہیں۔ پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے۔ اپوزیشن عوام کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں آئے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور امریکی سفیر نیچلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ میں اشتراک مضبوط کرنے پر غور۔ غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کارروائیاں۔ بارڈر سیکیورٹی کے لیے جدید امریکی آلات کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید تک رہ گیا ہے۔ دنیا وہ دیکھتی ہے جو ہم میڈیا پر دکھا رہے ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ مکان بنا رہی ہے۔ جس طرح سندھ نے کارکردگی دکھائی، دوسرے صوبے بھی ایسی ہی کارکردگی دکھائیں۔ سائبر نائف کے علاج کی سہولیات دنیا کے 11 ملکوں میں ہیں۔ تو بچوں سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت شخص ساتھی سمیت گرفتار۔ پولیس کو 6 سال سے چکمہ دے رہا تھا۔
कराची में ईस्ट इन्वेस्टिगेशन 1 की खुफिया इतला पर कार्रवाई। तहकीकाती टीम ने एक मुतासरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान में छापा मारा। मुख्तलिफ केसेस में डीएनए एक ही शख्स का मिला था। मरकजी मुलजिम मंजूर कॉलोनी का रिहायशी पंक्चर का ठिया लगाता है। मुलजिम अदालत में पेश। 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। शक है कि मुलजिम ने कई बच्चों को बदफेली के बाद कत्ल किया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश करनी है। मुतासरा बच्चों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। तफ्तीशी अफसर की अदालत से इस्तदा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में ट्रैफिक हादसा, 23 अफराद जाँ बहक। सरगोधा में शदीद धुंध के बायस अलमनाक सानहा। मिनी ट्रक हादसे का शिकार। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने की वजह से खुश्क नहर में जा गिरा। 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर उड़मारा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। 10 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 40 जख्मी। मुतासरा कोच कराची से जीवनी जा रही थी। गवादर में मुसाफिर बस को हादसा। पाक फौज और पाक बहरी की इमदादी कार्रवाइयाँ। लाशें और जख्मी पाक बहरी एम्बुलेंसेज से PNS दरमान जाह और माड़ा मुंतकिल। पाक बहरी के अस्पताल PNS दरमान जाह जिना नेवल बेस और माड़ा में इमरजेंसी नाफिज। शदीद जख्मी मुसाफिरों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया जा रहा है। कराची की सड़कों पर शहरियों का खून बहना बंद न हुआ। ट्रैफिक हादसात से कीमती जानों के ज़ियां का सिलसिला जारी। लांडी में मंजिल पंप के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 52 साला अशरफ जाँ बहक। बल्दिया टाउन राना ग्राउंड के करीब वाटर टैंकर ने 5 साला बच्चे हन्नान को कुचल दिया। शार फैसल नाता खान पुल पर मुसाफिर कोच उलटने से 3 खवातीन समेत कई अफराद जख्मी। पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का बेहतरीन निजाम है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और सेफ सिटी पर ब्रीफिंग। कहती हैं सूबे में स्मॉग कंट्रोल के बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में हेल्थ केयर का निज़ाम बर्बाद होने के करीब। हमने डॉक्टर्स भर्ती करने पर तवज्जो ज़्यादा दी मगर मरीज कम करने पर नहीं दी। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सुपर पावर जैसे इकॉनमी वाले मुल्क में भी एक साथ ज़्यादा लोग बीमार हो जाएं तो मईशत तबाह हो जाती है। हमारे सरकारी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। ईरान की G7 ममालिक के बयान की सख्त मजम्मत। मुनाफिकत करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा का इसराइल की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार। पुरअमन इज्तिमा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी खुदमुख्तारी के हक़ का इयादा। मुदाखलत बंद, पाबंदियाँ खत्म, इंसानी हुकूक को दबाव के लिए इस्तेमाल न किया जाए। G7 से मुतालबा। कहा ईरान इसराइल की फौजी जारहियत में मुआवनत को नहीं भूलेगा। साकदार और ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसाकदार ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार किया। दोनों फरीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर 2 तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीक़े से हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहते हैं फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़ात में करारदादों पर अमल नहीं हुआ। दुनिया में तनाज़ात रोकने के लिए चार्टर में तब्दीली नहीं बल्कि अमल की ज़रूरत है। आलमी बरादरी आज ताकत के कानून के बजाय कानून की ताकत पर बात कर रही है। पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन और बाहमी ताल्लुकात मुफीद हैं। रूसी सदर का मुस्बत पैगाम। रूस में तैनात नए पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी की प्यूटन से मुलाकात। सिफारती असनाद पेश की। सदर प्यूटन ने शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तानी किरदार को भी सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और रूस में पाकिस्तानी बिरादरी से राब्तों को तरजीह देने पर जोर दिया। तख्तगीर पॉलिसियाँ, हट धर्मी और इंतहा पसंदाना तर्ज हुक्मरानी। तालिबान हुकूमत आलमी सतह पर शदीद सिफाती तन्हाई का शिकार। रूस और अमरीका अफगानिस्तान के मामले पर राबते से मुकम्मल ला ताल्लुक। अफगान पनाह गुज़ीनों पर आलमी पाबंदियाँ सख्त। मुल्क बदरी और वीज़ा रुकावटों में इजाफा हो गया। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती से मुताल्लिक़ खदशात ने आलमी बरादरी में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक़ कर दी। गज़ा के अमन काउंसिल के अरकान का ऐलान। अमरीकन सदर सरबराह मुकर्रर। काउंसिल में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कॉशनर, टोनी ब्लेयर और दीगर शामिल। हर रुकन तामीर नौ, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी मालियात के शोबे का जिम्मेदार होगा। निकोलाई म्लाडिनोफ गज़ा के लिए आला नुमाइंदा मुकर्रर। जनरल जैस्पर जेफर्स बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की क़यादत करेंगे।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल रोजमर्रा इंतजाम और खिदमात को फरोग देने के लिए होगी। फलस्तीन में अमन कमेटी का क़याम बेसूद, इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, ड्रोन हमले, अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 14 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। हमास ने हमले को मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में बिगड़ते हुए इंसानी बहरान पर इज़हार तशवीश, कहा कि तबाही के बायस गजा मलबे के पहाड़ में तब्दील हो चुका है। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार, पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बसंत 2026 के लिए 10 साला डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया गया। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद होगा, सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाजत होगी। लाहौर के निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली जख्मी तालिबा अस्पताल से डिस्चार्ज, जनरल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तालिबा 12 रोज तक जेरे इलाज रही। तालिबा के मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए, जिनमें रीढ़ की हड्डी समेत दीगर हड्डियों की सर्जरी शामिल। पंजाब भर में आज भी धुंध के डेरे, मुख्तलिफ मोटरवेज बंद, लाहौर भी फॉग की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम, शहर में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री तक आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में सर्द मौसम, फ़ज़ा में हल्की धुंध बरकरार, हवा में नमी ज़्यादा। महकमा मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश की नवीद सुनाई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्कर्दू और मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियां दिलकश मनाज़िर पेश करने लगी। वादी नीलम, जागरा वैली, उड़ंकेल, शोंठर और टाउबच, अपर ग्रेस और हलमत में भी बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू। चित्राल, कालाम, महोडंड और मालम जब्बा में भी ठंड का राज बरकरार। शुमाली बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत न जाने पर मिस्र। आईसीसी का 2 रुकनी वफ्द बांग्लादेश पहुंच गया। बोर्ड से मुलाकात के बाद भारत के सिक्योरिटी इंतजामात पर बात करेगा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी वफ्द भारत जाने के मुमकिन तरीक़ेकार और मुतबादिल इंतजामात पर गौर करेगा। बांग्लादेश की जानिब से अब तक किसी हतमी फैसले की गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। लातादाद लाफानी अशार के खालिक उर्दू के मुमताज़ शायर मोहसिन भोपाली की बरसी आज मनाई जा रही है। भारत के शहर भोपाल में पैदा होने वाले मोहसिन भोपाली ने इब्तिदाई तालीम भोपाल में हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के हमरा नकल मकानी की। उम्र के आखिरी हिस्से में कराची में सुकूनत इख्तियार की। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात शुरू, आज अपनी दुल्हनिया ले जाएंगे। जुनैद सफदर की शादी शानज़े अली रोहेल से हो रही है, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती है।